it's a nirukti, and it is made up of two words. Anuman is made up of two words. Anuman, it is made up of two words. Anu means paschata. Anu means paschat, and mana means jnanakaran. That is preceded knowledge. It is the indirect knowledge, paschat jnanakaran. It is not the direct knowledge because it comes after the pratyaksha pramana. So it is paschat jnanakaran anumana. It is preceding knowledge or preceding recognition. So its nirukti is anupurvam hetum društva paschatmiyate iti anumanam. इति अनुमानम, प्रथम कारण को देखकर पश्चात उसके आधार पर परोक्ष स्थित विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाना अनुमान है. So it is a indirect knowledge, you can say, and it happens only after the knowledge of pratyaksha pramana. So this is the nirukti of anumana. So its lakshan, its characteristic features: anumanam khalu tarko yuktya apeksha in Charak Viman 4th chapter. So anumana, that is inference, is nothing but the logic or argument that are based on reasoning. It is called as anumana. युक्ति के आधार पर जो तर्क किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं. So tark it itself is a apratyaksha jnana or paroksha jnana, because we have seen tarka under the ayatharthanubhav as it's three types, that is sanshaya, viparya and tarka. These are the three types of anumana. So this tarka is nothing but apratyaksha jnana, or you can say paroksha jnana, indirect observation. युक्ति के अविनाभाव संबंध से उत्पन्न परोक्ष ज्ञान अनुमान है. अतः अनुमानम नाम तर्को युक्त्यपेक्षः यथा अग्निम जरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या श्रोत्रादीनि शब्दादि ग्रहणेन इत्येवम आदि, as per Acharya Charak in Mimamsa 8th chapter. So anumana, that is inference, is nothing but the logic or argument based on the reasoning, and we can judge anumana factors. For example, if you have to judge our agni, that is digestive power, it is judged by the power of digestion, that is jarana shaktya. Bala or strength is assessed by the power of strength of exercise, and shrotradi indriya, that is auditory sense organs, are judged by how can we receive the auditory impulses. This is examples of anumana. So next definition is mitena lingena arthasya paschatmanam anumanam, from Vatsyayana. अल्प लक्षण से विषय का पश्चात ज्ञान अनुमान है. तल्लिंगी लिंग पूर्वकम, फ्रॉम न्यायवार्तिक, लिंग पूर्वक लिंगी का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है. अनुमितिकरणम अनुमानम, अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह एज यूजुअल. अनुमिति का करण, दैट इज साधकतम कारण, यह अनुमान है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन इज अनुमिति, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉग्निशन इज इट्स करण. सो दिस इज अनुमान एज पर तर्क संग्रह. Next point, Anuman Pramana ka swarup. How can we understand the Anuman Pramana? So first we'll see what is Anumiti. So there are so many factors involved in understanding of Anuman Pramana. So what is Anumiti? Paramarsha Janyam Jnanam Anumiti. Paramarsha Janyam Jnanam Anumiti, according to Tark Sangrah, Paramarsha se utpanna jnana Anumiti hai. So here Paramarsha, this point we have to see what is Paramarsha. Paramarsha means व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, according to Tark Sangraha. The शाब्दिक अर्थ or the language meaning or the word meaning of this परामर्श is सलाह, मंत्रणा, युक्ति, विचार, विवेचन इत्यादि. तो व्याप्ति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं. जिस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा अनुमिति तक पहुंचा जाता है उसे परामर्श कहते हैं. So in परामर्श two words are involved, that is व्याप्ति and पक्षधर्मता. So we will see what is vyapti and what is pakshadharmata in next point. So what is vyapti? Yatra yatra dhuma tatra tatra agni iti sahacharya niyamo vyapti hi, according to Tark Sangraha. So व्याप्य का व्यापक के साथ या हेतु का साध्य के साथ रहने वाला अविनाभाव संबंध व्याप्ति है. जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है. That is such type of inherent relationship is called as vyapti, where you can see hetu and sadhya are used to be there. It is inevitable for them, so it is called as vyapti. इस प्रकार साहचर्य अर्थात धूम और अग्नि के साथ साथ रहने के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं. यहाँ पर देखो दो शब्द आए हैं, व्याप्य और व्यापक. तो यहाँ पर धूम जो है वह व्याप्य है और अग्नि यह व्यापक है. इसके बारे में आगे हम देखेंगे. Now we'll see what is व्याप्ति. अभी दो शब्द आए थे, व्याप्ति और पक्षधर्मता.
सबसे पहले हम देखेंगे व्याप्ति। व्हाट इज व्याप्ति? इट इज ऑफ टू टाइप्स। व्याप्ति हमने देखा लक्षण, उसके दो प्रकार बता रहे हैं अभी। फर्स्ट टाइप इज अन्वय व्याप्ति। अन्वयेन निरूपिता व्याप्ति अन्वय व्याप्ति। अन्वय मीन्स साथ साथ, यह भाव स्वरूप व्याप्ति है, अर्थात एक साथी के रहने पर साथ में दूसरा साथी भी उपस्थित रहे। एग्जाम्पल दिया है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, यह अन्वय व्याप्ति है। तो यह भाव स्वरूप व्याप्ति बताइए। नेक्स्ट इज व्यतिरेक व्याप्ति, सेकंड टाइप। व्यतिरेकेण या व्याप्ति ही निरूप्यते सा व्यतिरेक व्याप्ति ही। व्यतिरेक यह अभाव स्वरूप व्याप्ति है, अन्वय से विपरीत है। जैसे यह नहीं तो वह नहीं, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धूम नहीं, अर्थात जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ साध्य साधन हेतु का भी अभाव रहता है। तो यह अभाव स्वरूप व्याप्ति है। नेक्स्ट इज, नाउ विल सी व्हाट इज व्याप्य एंड व्यापक। सो व्याप्य, व्हाट इज व्याप्य? यह व्याप्यते स व्याप्य, जो व्याप्त किया जाता है वह व्याप्य है। अग्नि से धूम व्याप्त किया जाता है, अतः धूम व्याप्य है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि रहती है। इस तरह का साचर्य नियम हमें पता है। सेकंड इज व्यापक। यह व्याप्नोति स व्यापक, वह्निः धूमं व्याप्नोति अतो वह्निर व्यापक। जो व्याप्त होता है वह व्यापक है। अग्नि यह धूम में व्याप्त होती है, इसलिए अग्नि यह व्यापक हुई। नेक्स्ट विल सी पक्षधर्मता। व्हाट इज पक्षधर्मता? व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता। व्याप्य दैट इज धूम का पर्वत में रहना पक्षधर्मता कहलाता है। तो इसे हम पक्षधर्मता कहेंगे। जैसे कि हेतु का, व्याप्य अर्थात हेतु का पक्ष में रहना, दिस इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। सो थ्री, फ्रॉम all these definitions we have understood three important points, that is paksha, sadhya and hetu. So what is paksha? Paksha is parvata. Here in this example, if we'll consider smoke and fire example, wherever there is smoke there is fire. So in this example paksha is parvata, sadhya is agni and hetu is dhuma. By this joke you have watched or read in WhatsApp, a professor asked his students to prove why there is increased fire in winter season. आप कैसे सिद्ध करोगे कि शीत ऋतु में जठराग्नि तीव्र हो जाती है? स्टूडेंट कहता है, क्या सर इतना सरल सवाल, शीत ऋतु में मुंह से धुआं निकलता है और पदार्थ विज्ञान के अनुसार यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति सिद्धम। तो प्रोफेसर become very pleased and tells his student, please bring your father tomorrow in the department. So this is about the joke. Go to our topic again. So we'll see some other terms. What is paksha, sapaksha and vipaksha? So these are important terminology if we consider Anuman Pramana. What is paksha? Paksha means what? Sandigdha sadhyavan paksha. Yata dhumvatve hetau parvatah, according to Tark Sangraha. जहाँ साध्य की संदिग्धता हो या संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। यानी जिस स्थान पर हमें साध्य को सिद्ध करना है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में पर्वत वन्यमान धूमात, इसमें धूम हेतु होने से पर्वत यह पक्ष है, और यहाँ पर पर्वत में साध्य का संदेह हुआ अतः पर्वत यह पक्ष है। जिसका संदेह हो वह साध्य है। यहाँ पर अग्नि का हमें संदेह है, इसलिए अग्नि यह साध्य है, और जिस कारण से साध्य का निश्चय होता है वह हेतु है। साध्य रूप अग्नि का निश्चय धूम से होता है, अतः धूम यहाँ पर हेतु है। सपक्ष, सपक्ष क्या है? निश्चित साध्यवान सपक्ष, यथा तत्रैव महानसम, अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, जिसमें साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। यहाँ पर महानस दृष्टांत है, क्योंकि महानस म्हणजे काय? स्वयंपाक घर। स्वयंपाक घरामध्ये आपल्याला माहित आहे अग्नी असतेच तिथे कन्फर्म, म्हणून इथे महानसम किंवा स्वयंपाक घर हा जो उदाहरण आहे तो सपक्षाचा उदाहरण है कि जहाँ पर साध्य की निश्चिति 100% रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज सपक्ष। व्हाट इज विपक्ष? थर्ड पॉइंट, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, यथा तत्रैव महारुद्र, अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, जिसमें साध्य का अभाव हो, निश्चित है, जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित है उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे जलाशय, क्योंकि जलाशय में अग्नि का अभाव निश्चित होता है, यह हमें पता है, दैट वी नो।
दैट वी नो, तो जलाशय में अग्नि नहीं रहेगी, यह हमें पता है 100%, इसलिए यह विपक्ष का उदाहरण हुआ जहां पर साध्य का अभाव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, या सो बाय दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन I want to show how can we prove Anumana Pramana by this diagrammatic representation. So by combining these three words, that is Hetu, Paksha and Sadhya, so the relation between Hetu and Paksha is called as Paksha Dharmata, अर्थात धूम का पर्वत पर रहना, this is called as Paksha Dharmata. Second relation is between Hetu and Sadhya, it is called as Vyapti. हेतु साध्य संबंध व्याप्ति, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति साचरी नियमो व्याप्ति, वी हैव सीन। तो हेतु यानी कि जहाँ पर धूम है वहां पर अग्नि रहती है, इसे व्याप्ति कहते हैं। तो इस व्याप्ति और पक्षधर्मता के आधार पर हम अनुमिति का निश्चय करते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, जिसे कि परामर्श कहते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, और इसी परामर्श से अनुमिति की जाती है। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, और अनुमितिकरणम अनुमान। नेक्स्ट विल सी, सो इन nutshell, if you want to enlist these factors of anumana, there are total 10 factors in nutshell. What are they? We'll see one by one. First one is paksha, जहाँ पर साध्य सिद्ध करना है, that is called as paksha. Example is पर्वत. Second is हेतु, जिस साधन के द्वारा साध्य सिद्ध करना है, example is धूमा. Third is साध्य, पक्ष पर हेतु के आधार पर जो सिद्ध करना है, ऐसा पक्ष पर हेतु के आधार पर जो सिद्ध करना है, दैट इज अग्नि, यहाँ पर साध्य अग्नि है। फोर्थ वन इज सपक्ष, जहाँ पर साध्य निश्चित रूप से रहता है, ऐसा दृष्टांत, एग्जाम्पल महानसम म्हणजे स्वयंपाकघर। पांचवा विपक्ष, जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य का अभाव रहता है, एग्जाम्पल इज महारुद, दैट इज जलाशय। सिक्स्थ इज पक्षधर्मता, पक्षधर्मता हेतु व्याप्य का, हेतु दैट इज व्याप्य मीन्स धूम का पक्ष पर रहना, दिस इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता, यानी हेतु का पक्ष में रहना पक्षधर्मता। व्याप्ति, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, इट इज कॉल्ड एज व्याप्ति। परामर्श, व्याप्ति सहित पक्षधर्मता का ज्ञान, इट इज कॉल्ड एज परामर्श। अनुमिति, इस परामर्श से पर्वत अग्निमान है यह ज्ञान होना, इज कॉल्ड एज अनुमिति। इस परामर्श से पर्वत अग्निमान है यह ज्ञान होना, इट इज कॉल्ड एज अनुमिति। एंड व्हाट इज अनुमान? अनुमिति का साधन या कारण यही अनुमान प्रमाण है, दैट इज the process of inferring, the process of inference is based on the logic which is based on the appropriate reasoning. This is called as anumiti and this is anumana. Next we'll see types of anumana, anuman ke prakar. So there are so many different types have been enumerated from Acharya Charak, from Charak Samhita, from Nyaya Darshan, from Tarka Sangrah. First we'll see according to Acharya Charak. So according to Acharya Charak in Sutrasthan 11th chapter, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वन्निर निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एव व्यवस्यन्त अतीतम बीजात फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात फलम जातम यह सदृशम बुधा. So this is reference in Sutrasthan 11th chapter when Charaka was describing चतुर्विध परीक्षा to prove the rebirth theory. तो वहाँ पर ये 4 प्रकार की परीक्षाएं बताई, उसमें अनुमान का भी वर्णन किया है चरक ने। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अनुमान यह प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, दैट इज अनुमान, और इन्फरेंस इज प्रिसीडेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ओनली, एंड अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट मेक इन्फरेंस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इन्फरेंस इट इज ऑफ 3 टाइप्स एंड इन 3 टाइम पीरियड्स. फर्स्ट वन इज वर्तमान कालिक, दैट इज टू इन्फर स्मोक फ्रॉम फायर, धूम से टू स्मोक फायर फ्रॉम द स्मोक, धूम से गुड़ बनने का अनुमान करना. भूतकालीन सेकंड टाइप, गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान, दैट इज टू इन्फर प्रेगनेंसी फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन और द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. थर्ड इज भविष्यकालीन, दैट इज बीज से उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान, टू इन्फर अ ट्री फ्रॉम अ सीड. तो इस प्रकार आचार्य चरक ने 3 प्रकार बता दिए. Then next we'll see according to न्याय दर्शन. न्याय दर्शन में भी फिर से 3 प्रकार बता दिए. These are just similar to आचार्य चरक reference. So we'll see अत तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च according to न्याय दर्शन. So what is पूर्ववत? कारण से कार्य का अनुमान, that is from cause to effect, to infer from cause to effect, it is पूर्ववत. बादल को देखने से होने वाली वर्षा का अनुमान.
सेकंड शेषवत, कार्य से कारण का अनुमान, दैट इज टू इन्फर फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। एग्जाम्पल, बाढ़ को देखकर हुई वर्षा का अनुमान। थर्ड वन इज सामान्यतो दृष्ट, एक स्थान पर किसी वस्तु को देखने से उत्पन्न तत्समान ही वस्तुओं का अनुमान सामान्यतो दृष्ट है। तो यह चरक ने जो तीसरा प्रकार वर्तमान कालिक बताया है से वैसा ही है। एग्जाम्पल बताया है, एक स्थान पर पुष्पित आम्र को देखकर अन्यत्र भी पुष्पित आम्र का अनुमान करना। तो इस प्रकार न्याय दर्शन में तीन प्रकार, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में भी फिर से दो प्रकार बताए। देयर आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। फर्स्ट वन इज स्वार्थानुमान, दैट इज फॉर सेल्फ इन्फरेंस। स्वार्थानुमान इज कॉल्ड एज सेल्फ इन्फरेंस। स्वार्थम स्वार्थानुमिति हेतु, कर्ता द्वारा स्वयं को समझाने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान कहलाता है। यही लिंग परामर्श का भी हेतु है। सो दिस इज फॉर सेल्फ इन्फरेंस। एंड सेकंड टाइप इज परार्थानुमान, दैट इज फॉर इन्फरेंस फॉर अदर्स। इफ यू वांट टू प्रूव आवर इन्फरेंस, देन दिस परार्थानुमान इज यूज्ड। इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंस फॉर अदर्स। व्हाट इज डेफिनेशन? यत्तु स्वयं धूमात अग्निम अनुमानायम परम प्रति बोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमाना। जो कि स्वयं धूम स्वरूप हेतु से अग्नि का अनुमान कर दूसरों को समझाने के लिए पंचावयव युक्त वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह परार्थानुमान है। सो इन दिस परार्थानुमान वी हैव टू यूज पंचावयव वाक्य, एंड दिस परार्थानुमान also makes a base for research methodology also. So what are these पंचावयव वाक्य? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि पंचावयवः अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। So what are the Panchavayav Vakyas according to Tarka Sangra? We'll see one by one. First one is Pratigya. Parvato Agnimana iti Pratigya according to Tarka Sangra. If we'll take this example, किसी सिद्धि के लिए जो सिद्धांत वाक्य कहा जाता है वह प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा क्या हुई? यह पर्वत अग्नियुक्त है, म्हणजे हा पर्वत अग्नियुक्त आहे ही प्रतिज्ञा। सेकंड इज हेतु, धूमवत्वाद इति हेतु, किसी कार्य का कारण हेतु है, जैसे कि धूमात, धूम रूप हेतु से ही प्रतिज्ञा रूपी अग्नि की सिद्धि करनी है। थर्ड इज उदाहरण, यो यो धूमवान इति उदाहरणम यथा महानसः अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। जहां जहां धूम है वहां वह अग्नि है, जैसे कि पाकशाला, तो यह उदाहरण हुआ। फोर्थ इज उपनय, तथा च अयम इति उपनय अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। यह पर्वत भी, हा पर्वत सुद्धा पाकशाला प्रमाणे वन्य व्याप्य धूमयुक्त आहे, म्हणजे जसं तिथे होतं तसं इथे पण आहे। दिस इज कॉल्ड एज उपनय। फिफ्थ वन इज निगमन, तस्मात तथा, वरील चार अवयवांच्या आधारे जो निर्णय केला जातो, म्हणजे की हा पर्वत सुद्धा अग्नियुक्त आहे, दॅट इज कॉल्ड एज निगमन। नाउ अगेन दिस पंचावयव वाक्य नेक्स्ट विल सी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, बिकॉज फ्रॉम हियर यू कैन से, if you are saying that there is no mention of research methodology in our classical text, so it is wrong, because this was prevalent in ancient times also, and what we call nowadays evidence based Ayurveda, that we can find its reference in Charak Samhita itself in the form of Panchavayav Vakya. First one is Pratigya, it is called as hypothesis or research question. So whenever you do any research, these 5 points are very important. Even the fourth year students also can take some clues, some points from this Panchavaya Vakya. So what is Pratigya? Hypothesis or research question. Atha Pratigya, Pratigya nam Sadhya Vachanam yata Nityah Purusha iti. In Charak Viman 8th chapter, it is included under 44 Vad Marga Pada. साध्य वचन प्रतिज्ञा है, जैसे कि पुरुष नित्य है, यह साध्य वचन है, साधनों द्वारा इसी की सिद्धि करनी है। सो इट इज अ research problem, you can say, or statement, or hypothesis, research question, that is called as pratigya. Second is hetu. Hetu means what? It is materials and methods, or you can say it aims and objectives, or in short you can say tools of research methodology. These are tools by which you can gain the knowledge, you can do your research. So these are the tools of research methodology. What is hetu?
हेतुर्नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति ये भी हेतु भी उपलब्धते तत्तत्वम। व्यापक या साध्य की उपलब्धि के कारण को हेतु कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्षादि प्रमाण ही यथोक्त मूल होने से हेतु शब्द से समझना चाहिए, क्योंकि चरक ने चतुर्विध परीक्षा ऑलरेडी बता दी और इन्हीं चतुर्विध परीक्षाओं का हमें हेतु के रूप में उसको यूज करना है। किसी भी फैक्ट को हमें देखना है, फैक्ट फाइंडिंग करना है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इन हेतुओं से जो प्राप्त होता है वही तत्व या लिंग है। और यह हेतु दो प्रकार का बताया गया है। पहला है यथार्थ हेतु। यथार्थ हेतु क्या है? यह साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। सो यू कैन से इट इज नथिंग बट सदहेतु। सदहेतु का प्रकरण आगे आएगा, विल सी सदहेतु। सो व्हाट इज सदहेतु? टूल्स टू ऑब्टेन ट्रू और फैक्चुअल रिजल्ट्स, इट इज कॉल्ड एज सदहेतु। सेकंड इज अयथार्थ हेतु। तो यह हेतु दो प्रकार का होता है। यथार्थ हेतु जिसे कि सदहेतु भी कहते हैं, टूल्स टू ऑब्टेन ट्रू और फैक्चुअल रिजल्ट्स। सेकंड इज अयथार्थ हेतु, यानी कि जो हेतु न होते हुए भी हेतु की तरह प्रतीत होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हेत्वाभास। We'll see it later. What is hetvavas? So hetvavas means what? This is also important in research methodology because these are the tools to differentiate inclusion and exclusion criteria. क्योंकि हेत्वाभास यदि हम समझेंगे तभी अपने को पता रहेगा कि किन चीजों का समावेश करना है, किन चीजों को छोड़ देना है। So this is called as हेत्वाभास और अयथार्थ हेतु। Next is दृष्टांत। या हेतु के बाद में तीसरा है दृष्टांत। What is दृष्टांत? दृष्टांत means observations or you can say review of literature or collection of the references. So this is very important when you propose a certain study after design, after doing your aims and objectives and after hetu and all these things, you have to review the literature of the either past study or some latest study, or you have to make some collection of references. So this you can take by this drishtanta. So what is drishtanta? दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषां बुद्धि साम्यम यो वर्णम वर्णयति यथा अग्नि उष्ण द्रवम उदकम स्थिरा पृथ्वी आदित्य प्रकाशक इति। यथा आदित्य प्रकाशक तथा सांख्यवचनम प्रकाशकम इति। इन चरक विमान 8 चैप्टर। तो क्या बताया? जहां पर मूर्ख व विद्वान दोनों की बुद्धि साम्यता होती है, अर्थात समान रूप से समझते हैं, वह दृष्टांत है। तथा जो वर्णन योग्य विषयों का वर्णन भी करता हो, अर्थात साध्य को सिद्ध करता हो, वह दृष्टांत है। यानी दृष्टांत ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ कम्युनिटी। दृष्टांत और रेफरेंसेस और द लिटरेचर व्हाट एवर मे बी, इट शुड नॉट बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड टू फर्दर कॉम्प्लिकेट योर स्टडी। सो इट शुड बी वेरी इजी। जस्ट लाइक अग्नि यह उष्ण है, जल यह द्रव है, पृथ्वी स्थिर है, आदित्य प्रकाशक है। जिस तरह आदित्य प्रकाशक है उसी तरह सांख्य वचन भी प्रकाशक है। तो एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ पर दृष्टांत भी दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। साधर्म्य दृष्टांत, example is Mahanasam, that is similar to the proposed study. What is Vaidharmya Drishtanta? It is Jalashaya. It is opposite to the proposed study. Next we'll see Upanay, that is analysis, or you can say it is discussion or interpretation of the results. You have done your whole study, now it is time to interpret your results or you to make some discussion about your study. It's called as analysis. Upanayo chokcha uktam स्थापना व्याख्यायाम, उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना उपनय कहलाता है। यानी उदाहरण जो हमने दिए उसी के अनुसार अपना स्टडी पॉजिटिव उसी फ्रेम में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज उपनय। सॉरी, नेक्स्ट निगमन। निगमन मीन्स कंक्लूजन, टू एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यानी आपने जो पूरा स्टडी किया उसको आप कंक्लूड करोगे और जो भी प्रतिज्ञा की उसको आप फिर से दोहराओगे। यू हैव टू मेक अगेन प्रतिज्ञा। दिस कॉल्ड एज निगमन। निगमनम च उक्तम प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम, हेत्वोपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम। अर्थात हेतु का उपदेश होने से प्रतिज्ञा का दोबारा कथन करना निगमन कहलाता है। सो दिस विल सी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एग्जाम्पल्स। आचार्य चरक ने जो एग्जाम्पल्स दिए उसका हम देखेंगे वर्णन। प्रतिज्ञा, आचार्य चरक ने क्या बोला? प्रतिज्ञा नित्य पुरुष, यानी कि पुरुष नित्य है। दैट इज साउल इज इटर्नल, पुरुष नित्य है। हेतु अकृतकत्वात्, यानी कि यह बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि बनाया हुआ नहीं है, निर्माण किया हुआ नहीं है, इसलिए तो नित्य है। क्योंकि जो निर्माण किया हुआ होता है वो अनित्य हो जाता है। दृष्टांत क्या दिया है? यथा आकाशम इति, जिस प्रकार आकाश वह भी बनाया हुआ नहीं है, वह नित्य है। उपनय, यथा च अकृतकम आकाशम तच्च नित्यम तथा पुरुष इति। जैसे अकृतक आकाश वह नित्य है वैसे ही पुरुष भी नित्य है। निगमन, तस्मात् नित्य इति, इसलिए पुरुष नित्य है।
यह आचार्य चरक के अनुसार हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट विल सी लिंग परामर्श। लिंग परामर्श विवेचन व प्रकार। स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति लिंग परामर्श एवं करणम तस्मात् लिंग परामर्श अनुमानम। स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति, दोनों में लिंग परामर्श ही करण है, अतः अनुमिति का करण होने से लिंग परामर्श अनुमान है। लिंग का शब्द क्या है? हेतु, करण, साधन। तो लिंग का शब्द है कैरेक्टरिस्टिक मार्क, और लिंगी का अर्थ होता है हु पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक मार्क। तो लिंग लिंगी ज्ञान। तो यहाँ पर लिंग परामर्श या लिंग या हेतु तीन प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, ऐसे तीन प्रकार के बताए गए हैं। पहला है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। तो यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों के दृष्टांत मिले। जैसे पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धूम है, उदाहरण रसोई घर, यह अन्वय का ही दृष्टांत है और यह अन्वय व्याप्ति है। सेकंड, जहां अग्नि नहीं वहां धूम भी नहीं, उदाहरण जलाशय, यह दृष्टांत व्यतिरेकी है, अतः यह व्यतिरेक व्याप्ति है। सेकंड इज केवलान्वयी। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत्। जिस हेतु के साथ केवल अन्वय व्याप्ति हो उसे केवलान्वयी कहा जाता है। जैसे घट अभिधेय है क्योंकि वह प्रमेय है, तो यहाँ पर क्या बताया, जो प्रमेय है वह अभिधेय है। ऐसे अन्वय व्याप्ति तो है, लेकिन जहाँ अभिधेयत्व नहीं वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं, ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलती है। क्योंकि हमें पता है संसार की सभी वस्तुएं प्रमेय है और सभी अभिधेय भी है। अब प्रमेय मीन्स व्हाट? प्रमेय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस। एंड व्हाट इज अभिधेय? अभिधेय मीन्स नोएबिलिटी या नेमेबिलिटी, जिसका हम नामकरण कर सकते हैं। तो जितने भी संसार के वैलिड ऑब्जेक्ट है हम उन सबका नामकरण कर सकते हैं। तो यह अन्वय व्याप्ति का ही दृष्टांत मिलता है, यहाँ पर व्यतिरिक्त व्याप्ति का दृष्टांत नहीं मिलता है। तो यह हो गया केवलान्वयी। नेक्स्ट, केवल व्यतिरेकी। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्यो अभिद्यते गंधवत्वात्। जिसके साथ केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पृथ्वी अन्य तत्वों से यानी कि जल और बाकी अन्य महाभूतों से भिन्न है क्योंकि इसका गुण गंध है। जो अन्य से भिन्न नहीं वह गंध युक्त भी नहीं, जैसे कि जल। तो इस प्रकार यहाँ इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है जो कि जो गंध वाला है वह अन्य तत्वों से भिन्न है। ऐसा अन्य महाभूतों के बारे में भी कहते हैं कि जो रस गुण वाला है वह जल वह अन्य तत्वों से भिन्न है। अब यहाँ पर पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि गंध पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर इस केवल व्यतिरेकी में पक्ष क्या हो गया? पृथ्वी। और सिद्ध क्या करना है, साध्य क्या करना है? अन्य पदार्थों से भिन्नत्व। हेतु क्या दिया है? गंधवान। उदाहरण दिया है यहाँ पर जल। तो इस प्रकार यह केवल व्यतिरेकी दृष्टांत हुआ। नेक्स्ट विल सी अनुमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता। व्हाट इज द यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ अनुमाना इन आयुर्वेदा? Maharishi Charaka has included, means except Charvak Darshan, almost all philosophical texts have included Anumana as the source of knowledge. And Acharya Charaka has also included as the third pramana. According to Acharya Charak, Aptascha Upadeshena, Pratyaksha Karanena cha, Anumanena cha Vyadina, Samyak Vidyadavi Chakshana. So, पहले आप्त, फिर प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, ऐसा तीसरा प्रमाण बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष व आप्तोपदेश यह सीमित कार्य क्षेत्र है, अनुमान में असीमित ज्ञान होता है। सो एज वी सी सेंस द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय सेंसरी ऑर्गन इज वेरी लिमिटेड जस्ट फॉर अ टाइम पीरियड, but by anumana we can get knowledge of all the three time periods, that is past, future and present. So what is Charaka says, pratyakshami alpam अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। प्रत्यक्ष यह अल्पकाल के लिए ही सीमित है, अप्रत्यक्ष है वो बहुत ज्यादा है, जिसका कि हमें ज्ञान यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलब्ध है। इसका आगम अनुमान और युक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुमान द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि भी बताई है सूत्र स्थान 11 चैप्टर में चरक ने। नेक्स्ट, शरीर रचना में शरीर रचना के 107 मर्म, 900 स्नायु, इसको हम डिसेक्शन करने के बाद तो नहीं देख सकते, लेकिन अनुमान के द्वारा हम उसको इन्फ्रेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शरीर क्रिया। सेम इन शरीर क्रिया वी कैन नॉट सी वात पित्त कफ दोषा, बट वी कैन इन्फर देयर एक्सिस्टेंस बाय देयर फंक्शंस एंड ऑल द ऑन माइन्यूट फंक्शंस। नेक्स्ट, रोग निदान के लिए भी अनुमान प्रमाण का उपयोग होता है, स्पेशली गूढ़लिंग व्याधि, यानी जहाँ पर प्रोग्नोस्टिक डायग्नोसिस ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर
अनुमान के द्वारा व्याधि का निश्चय किया जाता है। यहाँ पर चरक ने विमान स्थान चौथे अध्याय में अनुमान के द्वारा कुछ ज्ञेय भाव दिए कि जिसकी अनुमान के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। ऐसे टोटल ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स है। यहाँ पर मैंने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं। तो क्या क्या है उसमें? अग्निम जरण शक्त्या, बलम व्यायाम शक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादि ग्रहणेन, विज्ञानम व्यवसायेन, क्रोधम अभिद्रोहेण, शोकम दैन्येन, हर्षम आमोदेन, धैर्यम अविषादेन, स्मृति स्मरणेन, अरिष्टे आयुक्षयम, आयु की क्षीणता। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कि हम अनुमान के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुमान का महत्व मैंने बता दिया। अनुमान के ऊपर 15 मार्क का LAQ आता है, या कभी कभी 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लिंग परामर्श पूछा जाता है, पक्ष सपक्ष विपक्ष पूछा जाता है, अनुमान के प्रकार पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट विल सी हेत्वाभास। हेत्वाभास का वर्णन हम हेतु जब मैं बता रहा था तो वो हमने 2 प्रकार के हेतु देखे थे, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। तो उसमें सबसे पहले यथार्थ हेतु जिसको कि हम सदहेतु कहते हैं। तो सदहेतु हेतु में जब निम्न 5 गुण होते हैं तब उसे सदहेतु कहते हैं, और इसी के द्वारा हम अपना स्टडी प्रॉपरली, आज अपना जो रिसर्च है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। ऐसे 5 गुण होने चाहिए। पहला है पक्षे सत्वम, यानी हेतु का पक्ष में रहना। उदाहरण पर्वत पर धूम की उपस्थिति। दूसरा है सपक्षे सत्वम, यानी सपक्ष में भी हेतु का रहना। उदाहरण रसोई घर में धूम की उपस्थिति। तीसरा विपक्षे असत्वम अवृत्तित्व, पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव। उदाहरण सरोवर या जलाशय में धूम की अनुपस्थिति। चौथा है असत प्रतिपक्षत्व, साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाले हेतु को प्रतिपक्ष कहते हैं। साध्य विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना, इसे असत प्रतिपक्षत्व कहते हैं। तो वहां पर हेतु में ऐसा प्रतिपक्षी हेतु नहीं होना चाहिए कि जो साध्य के भाव को सिद्ध करने के बजाय साध्य के अभाव को सिद्ध कर दे। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है? पर्वत पर अग्नि, यह धूम हेतु की वजह से है। यह ठीक है, यह सही व्याप्ति है, करेक्ट है। लेकिन पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वर्षा हेतु है, तो ये क्या हो गया? ये प्रतिपक्षी हेतु उत्पन्न हो गया, उपस्थित हो गया, जो कि अग्नि का अभाव सिद्ध कर देगा। तो ऐसा प्रतिपक्षी हेतु नहीं होना चाहिए। हेत्वाभास में इसका एक प्रकार आया है, वहां पर हम उसके बारे में देखेंगे। सत प्रतिपक्षत्व वहां पर आया है। पांचवा है सदहेतु में अबाधित विषयत्व, प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार बाधित न होना, यानी जो वस्तु किसी एक प्रमाण से सिद्ध किया तो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होनी चाहिए। तो ऐसे 5 गुण सदहेतु के बताए गए हैं। नेक्स्ट इज हेत्वाभास। हेतुवत आभासन्ते दुष्ट हेत्व इति अर्थः, यानी यथार्थ रूप से हेतु न होते हुए भी जो हेतुवत प्रतीत होता है उसे अहेतु, हेत्वाभास या दुष्ट हेतु कहते हैं। 5 प्रकार बता दिए। सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधितः पंच हेत्वाभासः। पहला प्रकार है सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार, इसका वर्णन चरक ने वाद मार्ग पद में किया है। पहले चरक के अनुसार देखेंगे। अतः सव्यभिचारम, सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम यथा भवेद इदम औषधम अस्मिन व्याधव यौगिकम अथवा नीति। जो व्यभिचरित होता रहे, यानी निश्चित रूप से साध्य के साथ न रहे, उसे सव्यभिचार कहते हैं। इसका अर्थ अनेकांतिक है। जैसे किसी व्याधि में किसी औषधि का योग करने पर यह निश्चिंतता न रहे कि यह योग ठीक है या वह, मीन्स देयर आर fluctuations in the opinion, such type of fluctuation, such type of fluctuating hetu is called as सव्यभिचार हेत्वाभास। According to तर्क संग्रह, सव्यभिचारो अनेकांतिक सत्रिविध साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात। अनेकांतिक हेतु सव्यभिचार कहा जाता है, अर्थात निश्चित रूप से जो अपने साध्य के साथ सतत न रहे, प्रत्युत कभी साध्य के साथ और कभी असाध्य के साथ रहे, उसे सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। म्हणजे हा याच्यामध्ये हेतू कधी साध्यासोबत असतो, कधी साध्यामध्ये नसतो, पण अशा प्रकारच्या हेत्वाभासाला सव्यभिचार हेत्वाभास म्हणतात। आणि याचे 3 प्रकार सांगितलेले आहेत, साधारण, असाधारण आणि अनुपसंहारी। तर पहिला प्रकार आहे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। तत्र साध्य अभाववद वृत्ति ही साधारणो अनेकांतिकः, अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, जिसमें हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और उसके अभाव में अलग अन्य वस्तुओं में भी पाया जाए। अर्थात हेतु जब पक्ष सपक्ष व विपक्ष तीनों में रहता है तब उसे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर बताया है, पर्वत जो है, पर्वत पर अग्नि है
यह साध्य करना है, लेकिन यहाँ पर हेतु बताया है प्रमेयत्व, ज्ञान का विषय। अब ये जो हेतु प्रमेयत्व है ज्ञान का विषय, वह बहुत सारी अग्नि के अलावा अन्य बहुत सारी विषयों में भी पाया जाता है, जल में पाया जाता है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड दिस प्रमेयत्व हेतु। तो यह पक्ष में भी, सपक्ष में भी, विपक्ष में, सभी में रहता है। तो यह साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। यहाँ पर क्लिनिकल एग्जाम्पल लेंगे। भास्कर हैज पार्किंसोनिज्म because his muscles are hypertonic. Now this is not the hypertonic muscles are not the characteristic features of Parkinsonism. It can be find in so many other diseases also. So this is called as sadharan savyabhichar hetvabhas. Second is asadharan savyabhichar hetvabhas. सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण, जो किसी भी सपक्ष और विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष मात्र में ही रहता है, उसे असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व हेतु है। तो ये जो शब्दत्व हेतु है यह पक्ष यानी केवल पक्ष में रहेगा, शब्द में, शब्द के अलावा इसका अन्य और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। तो यह हेतु सिर्फ पक्ष में चला गया, उसके बाकी अन्य यानी सपक्ष विपक्ष के कोई भी उदाहरण प्राप्त नहीं हो रहे, तो यह असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है? वातज प्रमेय इज इनक्यूरेबल बिकॉज इट इज ऑफ वात ओरिजिन। अब वातज प्रमेय इनक्यूरेबल बता दिया तो सभी चीजें वात के अंतर्गत चली गई, उसमें आप बाकी दूसरा कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं, तो यह असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। तीसरा है अनुपसंहारी हेत्वाभास। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी अन्वय व्याप्ति व व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांत से रहित जो हेतु है, क्योंकि हमने देखा है अनुमान या फिर लिंग परामर्श के लिए लिंग परामर्श के द्वारा अनुमिति की जाती है, तो उसमें हमें अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति इसके दृष्टांत जरूरी है, लेकिन यदि नहीं मिलते हैं ऐसे दृष्टांत तो वह अनुपसंहारी हेतु है। उदाहरण क्या दिया है? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। सब सर्व, अभी यहाँ पर पक्ष क्या आ गया? सब, सभी जो है संसार की जितनी भी चीजें हैं वह अनित्य है, क्योंकि प्रमेयत्व हेतु की वजह से, प्रमेयत्व हेतु होने की वजह से संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है। अभी सब संसार की सभी वस्तुओं में सब चीजें आ गई तो उसमें आपको अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप, तो यह इस प्रकार का हेत्वाभास अनुपसंहारी हेत्वाभास है। क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है? ऑल द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय आम। अभी सभी रोग जो है आम की वजह से होते हैं, एक बताया रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस दे सकते हैं इसमें, ऑल द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द सप्रेशन ऑफ वेगास। रोगा वेगो धीरण धारण है वो जो बताया, रोगा सर्वव्यापी मंदेग्नो, तो ये सभी चीजें उसके अंतर्गत चली गई, तो उसमें आप दूसरे को एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अभी जो सव्यभिचार हेत्वाभास के हमने 3 प्रकार देखे, उनमें परस्पर क्या अंतर है? साधारण सव्यभिचार, इसका क्षेत्र व्यापक है, यह पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में रहता है। असाधारण, इसका क्षेत्र संकुचित है, यह केवल पक्ष में रहता है। अनुपसंहारी, इसमें पक्ष ही सर्वव्यापी हो जाता है। सेकंड इज विरुद्ध हेत्वाभास। साध्य अभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध यथा शब्दो नित्य कृतकत्वाद घटवत इति। जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर साध्य अभाव से व्याप्त हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। अर्थात जो हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे उसके विरुद्ध निष्कर्ष को ही सिद्ध करे वह विरुद्ध हेत्वाभास है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, शब्द यह नित्य है क्योंकि हेतु क्या दिया है? कृतकत्व, उत्पन्न होना, घट के समान। अभी जो कृतकत्व यह हेतु दिया है, यदि हम यह हेतु देते हैं तो यह शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करेगा, यानी जो हमें साध्य सिद्ध करना है नित्यत्व, उसके अभाव को अनित्यत्व को सिद्ध कर देगा, तो यह विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। क्लिनिकल एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर केशव हैज एलेमन लीजन बिकॉज द बेबिन्स्किन साइन इज पॉजिटिव। अब ये विरुद्ध हेतु आ गया क्योंकि बेबिन्स्किन साइन जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम या अपर ब्रेन फंक्शंस में पॉजिटिव आती है, एलिमेंट में नहीं आती है, तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है। सव्यभिचार व विरुद्ध हेत्वाभास में अंतर क्या है? सव्यभिचार हेत्वाभास में हेतु साध्य के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी पाया जाता है, उसका साध्य के साथ एकांतिक संबंध न होने से वह साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर पाता, जबकि विरुद्ध हेत्वाभास में साध्य के ठीक विपरीत या उल्टा निष्कर्ष सिद्ध होता है। थर्ड टाइप इज सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। सद हेतु में एक आया था सद हेतु असत प्रतिपक्षत्व, तो वह सद हेतु है, और सत प्रतिपक्ष यदि हो गया हेतु तो वह हेत्वाभास हो जाता है। साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्य श्रवणत्वात् शब्दवत् शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी जब उसी पक्ष पर उपस्थित हो जाए तब उसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं।
तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है शब्द यह श्रावणत्व हेतु की वजह से नित्य है, जैसे कि शब्दत्व। और दूसरा उदाहरण है शब्द यह कार्य होने की वजह से अनित्य है, जैसे कि घट। तो यहाँ पर ये जो दोनों हेतु दिए हैं, श्रावणत्व और इधर कार्य, ये दोनों हेतु एक दूसरे के ऊपर प्रतिपक्षित हो जाते हैं, तो अनुमिति रुक जाती है, अनुमान प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के सत प्रतिपक्षित हो जाते हैं और साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। यानी यहाँ क्लिनिकल एग्जाम्पल देखेंगे। श्रीमती कमला इज प्रेग्नेंट बिकॉज शी हैज अमोनोरिया, बट हियर प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। सो अमोनोरिया होने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस अवेलेबल है, आपको वो सर्च आउट करना पड़ेगा। तो ये आपका सत प्रतिपक्षित हेत्वाभास हो गया। फोर्थ इज असिद्ध हेत्वाभास। तत्र लिंगत्वेन असिद्धो हेतु असिद्ध। जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं होता, तो उससे उत्पन्न दोष को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तीन प्रकार बताए गए हैं। असिद्ध त्रिविध, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्धो, व्यापत्वा सिद्धश्चेति। आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व असिद्ध। सबसे पहले देखेंगे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत, एग्जाम्पल दिया तर्क संग्रह में। जिस हेतु का आश्रय पक्ष न हो उसे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यानी जहां पर हेतु को आश्रय पक्ष नहीं मिलता है, ऐसा यदि हम वर्णन करते हैं तो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल क्या दिया, आकाश कमल हा सुगंधित आहे कारण त्याच्यामध्ये कमलत्व हा हेतू आहे, जसे की सरोवर कमल। आता स्वतः आकाश कमलाचा आश्रय सिद्ध नहीं है, आकाश कमल का स्वयं का आश्रय नहीं है, वो दूसरे को क्या आश्रय देगा, वो क्या सिद्ध करेगा। तो इस प्रकार का जो हेत्वाभास है वो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीमती कमलास प्रोस्टेटिस इज इनक्यूरेबल बिकॉज इट इज वेरी क्रॉनिक। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट जो है वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, तो उसका आश्रय असिद्ध है। तो ये हो गया आपका आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। सेकंड इज स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्। जिस हेतु का आश्रय तो हो परंतु हेतु उस आश्रय में न रहता हो, वह स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल, शब्द हा गुण है कारण त्याच्यामध्ये चाक्षुषत्व आहे, जसे की रूप गुण। आता शब्द हा गुण है, दैट इज करेक्ट, पण त्याच्यामध्ये चाक्षुषत्व आहे का, नाही, क्योंकि शब्द जो है वह सुना जाता है, देखा नहीं जाता। शब्द हा ऐकला जातो, बघितला नहीं जाता। तो यह शब्द का ये जो हेतु है वह उसके स्वरूप असिद्ध को सिद्ध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट कैन बी सीन, सो दिस इज स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। we cannot see sound, we can hear sound. थर्ड वन इज व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास। सोपाधिको हेतु व्यापत्व सिद्ध। उपाधि युक्त हेतु को व्यापत्व सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अनुमान में साध्य यह हमेशा व्यापक व हेतु यह व्याप्य होता है, ये हमें पता है, पर जब हेतु यह व्याप्य न होकर व्यापक हो जाए तब उसे व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण, पर्वतो धूमवान वन्य। अभी यहाँ पर उदाहरण रिवर्स कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया है। रूटीन उदाहरण क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमान, ये उदाहरण रेगुलर है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, पर्वतो धूमवान वन्य। अब यहाँ पर पक्ष तो पर्वत है, लेकिन साध्य और हेतु इंटरचेंज हो गए आपस में। साध्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धूमवान, हेतु क्या है, अग्नि। तो जब ये इंटरचेंज होता है तब जहाँ पर हमें साध्य धूम सिद्ध करना है अग्नि हेतु की वजह से, तो वहां पर हमें उपाधि देनी पड़ती है, आर्द्र ईंधन संयोग, यह उपाधि देनी पड़ती है। तो इस प्रकार उपाधि देने की वजह से यह व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है, क्योंकि हर जगह जहाँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जहाँ पर यदि हमें धूम सिद्ध करना है अग्नि हेतु की वजह से, हमें वहां आर्द्र ईंधन की वजह से ही धूम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यह एग्जाम्पल रिवर्स हो गया है। तो योग्य व्याप्ति क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमाद्य, यह योग्य व्याप्ति है। यहाँ पर अग्नि साध्य यानी कि व्यापक व धूम यह हेतु है, यानी कि व्याप्य है। और पर्वतो धूमान वन्य यह अयोग्य व्याप्ति है, क्योंकि यहाँ पर धूम यह साध्य हो गया यानी कि व्यापक हो गया, और अग्नि यह हेतु है। लास्ट इज बाधित हेत्वाभास। यस्य साध्य अभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित यथा वन्निर अनुष्णो द्रव्यत्वाद इति। जिसके साध्य का अभाव प्रमाणांतर से पक्ष में सिद्ध हो उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। यानी जो वस्तु, जैसा हमने देखा था सदहेतु में अबाधित हेतु चाहिए, लेकिन यहाँ पर यदि बाधित हो जाता है कोई एक चीज अन्य प्रमाणों से, वो बाधित हो जाती है, तब उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है,
अग्नि यह शीत है क्योंकि उसमें द्रवत्व यह हेतु है, जैसे कि पृथ्वी इत्यादि अन्य द्रव्य। लेकिन अग्नि का जो उष्णत्व है वह हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है ऑलरेडी, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से इसमें बाधा आ रही है, तो यह बाधित हेत्वाभास हो गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।